Okay, so I'm going to do the analysis part. Nobody seems to know where we were last time. Okay. Yeah, Vishwajit. Who's Vishwajit? Vishwajit, can you hear me? जवान नहीं है सभी। वेटिंग रूम में है वो और मैं उसको कब से एडमिट कर रहा हूँ। ही इज ट्राइंग टू जॉइन विद 2 फोन्स क्योंकि उसका 2 एंट्री दिख रहा है मेरे को। Okay, so the postmaster, as we all know, is a young man from Calcutta, earns his first job. ये हम लोग नहीं किए थे। So he earns his first job working at a post office in a small rural village in Ullapur. Near the post office is an indigo factory. सर आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। यहाँ पे लोग क्लास ले रहे हैं या क्या कह सकते हैं। सोनी मैम स्लो लेने के लिए एक मिनट, हाँ, जस्ट होल्ड ऑन। Okay, shut the door. So hopefully it will be better now. So there we have the postmaster who's from Calcutta. और वो Calcutta से वहाँ पहुँच करके he starts working as a postmaster in Ullapur. यहीं पे उनको जॉब मिला और वहाँ पे एक इंडिगो फैक्ट्री भी है जो नील का फैक्ट्री। It is owned by a British manager who helped to establish the new post office. उसी ने मांग की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस दिया। So the postmaster, he feels very out of place. Out of place, why? Because he does not have anyone to mix with. जितने वहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं वो गांव के रहने वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं और ये जो है सो एक्सपीरियंस पढ़ा लिखा हो। तो जब भी आदमी कोई भी होता है वो अपने सोच वाले ऐसे लोग या अपने बराबर के लोगों से वो मिलना चाहता है शैक्षिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे। And he is not able to find any companions, so he feels very out of place now in Ullapur. And the work is in a hut next to a pond that is covered in weeds. Weeds क्या होता है? Can anybody tell me what are weeds? Vishwajit? Weeds Yes, sir. Weeds किसको कहते हैं? No idea, sir. That's the easiest answer. Anybody? 7102? नो सर। Weeds सर नशीला पदार्थ होता है। सर वीड्स का मीनिंग मातम। यस सर, शोक। नहीं, कहाँ से मिल गया ये वर्ड? ऐसा तो कहीं है नहीं। वीड का मतलब किसी ने सही कहा कि नशे की चीज को भी वीड कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे वीड से मतलब है जंगली घास फूस। पॉन्ड यानी एक छोटा सा तालाब that is covered in weeds
जंगली घास फूस वहां पे चारों तरफ से उसको घेरे and surrounded by jungle. He is more educated than the indigo factory workers. ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, postmaster, and who are the only men he can socialize with, but they are too busy to spend much time with him. And because of his upbringing, he is arrogant and uncomfortable around. Right? So he is uncomfortable. And therefore, he doesn't want to mix. थोड़ा सा arrogance भी है, घमंड भी है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इन लोगों से मैं क्या बात करूँगा, ऐसा भी है. So as the postmaster has little work to do in Ullapur, काम उनके पास ज्यादा था नहीं क्योंकि पोस्ट ऑफिस अभी just शुरू हुआ था. He spends his free time writing poems which expresses the joy to be found in observing nature. कविता लिखते थे और अगल बगल बहुत खूबसूरत नजारा था. So he had plenty of subject or topic to write on. लेकिन उनको वहां पे मन नहीं लगता था, इसलिए उनको यहाँ पे half dead बोला गया. Half dead means he is not enjoying it. In Ullapur, despite its natural beauty, he doesn't enjoy it, and he believes that he could come alive again. फिर से वो जिंदा हो सकते हैं पूरी तरह से अगर एक अलादीन के चिराग के तहत एक जीनी निकलता है और वो जीनी पूरे जंगल उंगल को काट करके चौड़े चौड़े रोड और बड़े बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग कलकत्ता ऐसा उल्लापुर में भी बन जाए तो he will be very happy. देख रहे हैं? And an Arab legend मतलब वही अलादीन का चिराग. It could cut down all the trees in Ullapur. Cut down all the trees, construct a street and erect tall buildings. That is what he wishes for. उनकी कामना है कि ऐसा कुछ हो. Besides, his salary is low and the postmaster has to cook his own meals, though he hires an orphan village girl, Ratan, to do the housework for him. यहाँ पे ही वो रतन को रखते हैं और वो हाउसवर्क यानी झाड़ू पोछा खाना पीना और ये सब चीज उन लोगों के लिए बनाती है. And he compensates her with a share of his food. खाने के उसके बदले में कुछ खाना देते हैं उसके मेहनत के लिए. In the postmaster's view, Ratan is not likely to get married. ऐसा क्यों है? पोस्टमास्टर क्यों कहते हैं कि is not likely, Ratan is not likely to get married? ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे ऊपर सृष्टि. यस सर. ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कहानी के कि क्यों उसकी शादी नहीं होगी शायद. नहीं रतन सर. की. नहीं नहीं. मैं याद दिलाता हूँ आप लोगों को. ये देखिएगा मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ. She is 12 or 13, impoverished यानी बहुत गरीब. ठीक है. She is very poor, impoverished and unlikely to get married. Why? Likely because she lacks a dowry. दहेज में देने के लिए कुछ नहीं. तो अब याद आ गया नहीं. But when I was saying earlier on, नहीं याद आया सर. ये वाला तो फर्स्ट पैराग्राफ है जो हम लोगों ने कल परसों मतलब किया था. ठीक है, फ्राइडे को. सॉरी सर कल उसके मैं नेट नहीं काम कर रहा था शायद नहीं सुन पाई हूँ. She is unlikely to get married likely because she lacks a dowry. दहेज देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था. उसके वो तो अनाथ भी थी तो घर वाले भी उसके कुछ नहीं थे. Okay, so the postmaster has little work to do in Ullapur
and he sometimes spends his free time writing poems, which expresses the joy to be found in observing nature. ये हम लोगों ने कर लिया। इसे नीचे वाले स्टेंजा में तो Because his salary is low, the postmaster has to cook his own meals. Ratan is a housework. ये हम लोग कर लिए, and she's not likely to get married. वहाँ पे अब उल्लापुर का माहौल बताया है। वहाँ पे रात में at night an intoxicated singers from the nearby village gather to sing. वहाँ पे intoxicated मतलब लोग नशा शराब पी करके, intoxicated मतलब नशे में, वहाँ के सिंगर्स जो हैं वो गाना गाते हैं और disrupting the evening silence. उनको पोस्टमास्टर को शांति पसंद था, लेकिन वहाँ पे सब शराब पी करके और लोकल लोग गाना वाना गाते हैं, तो वो अपने हट के अंदर आ जाता है। हट मतलब कुटिया, झोपड़ी। So he comes inside, disrupting the evening silence. The postmaster goes inside his hut, lights a lamp. बिजली थी नहीं, दिया जलाते हैं या लैंप जलाते हैं, and calls for Ratan. Ratan calls back. What is it, Dada Babu? What do you want? Ratan insists that she must light the kitchen fire. जो किचन का जो चूल्हा है उसको सुलगाओ, खाना बनाओ, kitchen fire. But the postmaster tells her to get his hookah ready. वो हुक्का पीते थे पोस्ट ऑफिस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर उधर से बहुत साउंड आ रहा है आपके साइड से। आप सर थोड़ा तेज बोलिए। ये हो सकता है। Just एक मिनट ना प्लीज। ठीक है, so वो हुक्का पीते हैं, ठीक है, so he asks her to light the coal, कोयले से अपना हुक्का जलाओ, kitchen fire, but the postmaster tells her to get the hookah ready. He then asks if she remembers her mother. ये सब बातें हम लोग में होती हैं, क्या तुमको अपने बचपन की कुछ चीजें याद हैं, तुमको अपने माता पिता की कुछ यादें हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पोस्टमास्टर पूछते थे, क्योंकि उनके पास और कोई काम भी नहीं। So she remembers all things about her childhood, but other things she doesn't. She remembers that her father loved her more than her mother, and her father worked all day long. As Ratan tells the postmaster about her childhood, she approaches him and ends up sitting on the ground by his feet. हमेशा उनके पैर के पास बैठ। She also recalls her younger brother, छोटे भाई के बारे में भी उसको याद है, and how the two of them would pretend to catch fish with sticks from trees. कैसे वो लोग बचपन में एक खेल खेला करते थे जब वो मछलियां पकड़ते थे स्टिक से, एक छोटा सा स्टिक यानी एक डंडा. So this is the memory that she can recall in more detail than other memories. This is the only memory that she can recall. So they become friends. और यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रतन जो है वो छोटी बच्ची थी, अपरिपक्व, immature, and she gets confused. She likes the postmaster. Sometimes उसको postmaster में अपने पिता की छवि दिखती थी, और कई बार उसमें उनको अपने पति की छवि दिखती थी. So she was only 12 or 13, and she was a confused child. She was not very clear in her mental concepts. वो बहुत साफ सुथरा, उसका दिमाग में ये नहीं होता था कि क्या सही है, क्या गलत है या क्या सही. So the postmaster is not used to rural life in Ullapur, which sharply contrasts his upbringing in urban Calcutta.
अर्बन मतलब शहरी कलकत्ता में पले बड़े थे, गांव की जिंदगी उनको बिल्कुल रास नहीं आती. Not only is he confronted with people of an extremely different class, अलग आर्थिक वर्ग, ठीक है, class, status, uneducated, low-level workers, but he must work in a rustic, weed-covered hut. यानी rustic मतलब बहुत प्रारंभिक एक कुटिया में उनको काम करना पड़ता. तो चारों तरफ वीड यानी घास फूस से कवर था, ऊपर भी उसके लत्तर उत्तर चढ़ा हुआ है. Climbers, they are climbing on the top of that hut. So he does not like all this because he has always lived in a pakka house. So from the outset, the postmaster's class status and urban background is complete in his settlement, immediately suggesting a deep division, बहुत जबरदस्त विभाजन, urban and rural life, as well as between lower and upper class individuals. ये दोनों में बहुत विभाजन था. और upper class, lower class, gender bias भी था. फीमेल थी रतन, इसलिए शायद उसके साथ इतना कुछ घटना घटा, वो गरीब और फीमेल. Although Ullapoor's natural landscape से क्या मतलब है? तो बताएगा नेचुरल लैंडस्केप. किसी को नहीं पता? रिया? नो सर. ना, ये नेचुरल का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक. और लैंडस्केप यानी पेड़ पौधे पहाड़, ये सबको लैंडस्केप कहते हैं. सर प्राकृतिक नजारा. बिल्कुल, प्राकृतिक नजारा या प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल लैंडस्केप. यस सर. is exquisite मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत. Primed for description in poetry, the postmaster still longs for modernized urban life. Urban life उसको पसंद है. Even though the postmaster finds the natural world in rural Bengal beautiful, he cannot help but prefer urban surroundings. उनको हमेशा अर्बन मतलब शहरी चीजें, जैसे बिल्डिंग, चौड़े रोड्स, बड़े बड़े ऊंची बिल्डिंग्स, वो सब उनको अच्छी लगती है. That setting is most familiar to them. Familiar मतलब उसी को वो देखते देखते बड़े हुए हैं और उनको वही अच्छा लगता है. सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ, सर एक्सक्विजाइट मतलब क्या बताएं? एक्सक्विजिट मतलब बहुत ब्यूटीफुल. ये देखो, ये वर्ड है एक्सक्विजिट. यस सर. एक्सक्यूजिट मतलब वेरी ब्यूटीफुल. वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू सर. So Ratan is also of a lower class status than the postmaster, and as a woman who is unlikely to be married, she is limited to performing menial labor jobs for the men who employ her. Menial मतलब छोटा मोटा कोई काम वो करती है, जैसे झाड़ू पोछा. उसमें कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है उस काम के लिए, और इसी का मतलब होता है menial यानी लो पेड जॉब. उसका बहुत कम पैसा या बहुत खाली खाने पीने पे गुजारा हो जाता है. According to the rules, society dictates along the lines of class and gender. Class, middle class, upper class, कौन से आर्थिक वर्ग से हो आप. Ratan can only receive opportunities in life from wealthier men. जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं से उसको कुछ मिल सकता है. Though these are severely restricted and she is not compensated fairly. उसको जो पैसा या खाना है जो भी मिलता है वो भी सही नहीं है, उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है, जैसे तैसे उसका गुजारा हो रहा है. Ratan and the postmaster begin to develop a relationship, suggesting that they might be able to overcome their distinct class statuses and find unity through sharing their experience. एक दूसरे का तजुर्बा और वो लोग शेयर कर रहे हैं. भावनात्मक रूप से भी वो बहुत जुड़ गई postmaster से. And Ratan begins to feel comfortable
enough with the postmaster to physically approach him, while previously she would stand at a distance from him. पहले वो एकदम दूर दूर खड़ी रहती थी, हट के बाहर रहती थी, लेकिन अब वो जैसे जैसे बातचीत करके एक दूसरे को समझने लगे, तो अब वो घर में आकर के उनका काम भी कर देती थी and all that. And previously she would stand at a distance. So वो भी postmaster ने भी उनको पढ़ाया लिखाया, ये भी ऊपर वाले, he was trying to get her literate, लेकिन वो बीमार पड़ गई. So this was the problem. अब इसमें जो है ये आप लोग पढ़ के आइएगा परसों. अच्छा, आप लोग को असाइनमेंट के बारे में बता दिया गया है? यस सर, बता दीजिएगा। अब कुछ लोगों ने भेज भी दिया होगा. यस सर। वेरी गुड. तो भेजिएगा तो याद करके रोल नंबर और सारा डिटेल्स उसमें रहना चाहिए. सर भेज दिए, रोल नंबर, आईडी, हाँ, बैच. वेरी गुड. यस सर। और वेस्टविंड का ये था ना? हाँ, टॉपिक, So I will. समरी. Okay. So and then as you can see, character analysis भी इसमें सबका दिया हुआ है, यानी किसका नेचर या कैसा पात्र का कैरेक्टर. तो दो ही तो यहाँ पे पात्र हैं, only two. You can write this is the about the postmaster. हाँ, बोलो. सर मेरे को ये समझ में नहीं आई, ये रतन कौन थे? रतन जो थी वो गांव की एक अनाथ बालिका थी. अच्छा, बालिका थी. हाँ, पिछले बार हम लोग किए थे, देखो. The postmaster asks an orphan, यानी एक ऐसी लड़की जो ऑर्फन थी यानी अनाथ थी, ऑर्फन विलेज गर्ल नेम्ड रतन टू कंप्लीट हाउसहोल्ड. ये जब उल्लापुर पहुंचे तो इनके पास कोई, पिछले क्लास में तुम प्रेजेंट थी, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था पिछले सर क्लास में. प्रेजेंट थी बट नेटवर्क उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था. वहां पे वो उसको घर के काम करने के लिए उसको उन्होंने रखा, खाना बना देना, झाड़ू पोछा कर देना, ये रतन. और वो गांव की एक अनाथ लड़की थी. और सर जो वो एनालिसिस में सब जो बता रहे थे वो सब किसके बारे में था? वो रतन के बारे में था? Yes, sir. बिल्कुल. तुमको इसमें समझ में क्यों नहीं आ रही है? हमको नहीं समझ. समझ ही में नहीं आ रहा सर. एनालिसिस. पोस्टमास्टर इज अ यंग मैन. आपने पढ़ा है इसको? आप लोग पीडीएफ फॉर्म में है तो हैव यू ट्राइड रीडिंग इट? सर आई डिड इट. This is all about the postmaster and how he comes to Calcutta and he works as a postmaster over there, and then उसको अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे उल्लापुर में because he's a urban boy. अच्छा, अगर डिस्कनेक्ट होंगे तो प्लीज everybody will join. Okay? Okay, sir. So he does not like anything. ये हम लोग postmaster के बारे में बात करते हैं. फिर यहाँ पे ही वो कहते हैं कि शायद सारे पेड़ को काट करके चौड़े चौड़े रोड बन जाते उल्लापुर. फिर यहाँ पे वो दादा बाबू बुलाती है पोस्टमास्टर. वो रतन बुलाती है दादा बाबू. बिल्कुल. देखो ना, रतन एंड रतन कॉल्स बैक. यस सर, रतन कॉल्स बैक दादा बाबू. यस सर. इसके बाद में भी आपको नहीं अगर याद है तो बड़ा खेद है मुझे. नहीं सर, समझ गई. तो ऊपर भी कुछ था बस. यहाँ पे जो कैरेक्टर्स लिखा हुआ है सब होगा, ठीक है, कैरेक्टर है, उनका मतलब इसमें कैसा मिक्स ये था, व्यक्तित्व कैसा. You will read all of you and I will ask the question in the next class. ओके सर. सर ये रिकॉर्ड हो रहा है तो यूट्यूब पर डलेगा? नहीं, यूनिवर्सिटी के लिए जाएगा ये. रतन कैरेक्टर एनालिसिस का भी है, ठीक है. और रतन is a 12 or 13-year-old orphan village girl who helps the postmaster. Complete background इसके बारे में. ठीक है. So I want you to read this and I will ask the questions. ठीक है रजनीश? Yes, sir.
ये है 445 राइट BBM yes sir. Yes, sir. और अटेंडेंस जिन लोगों का हो जाता है they can go but the others will rejoin.